Good afternoon, students. Welcome back to my channel. Myself Imani Shah, founder of Visa Tree. Today I am having Abhishek with me. He is from Red Deer Polytechnic, Canada. Welcome to my studio, Abhishek. So I'm really glad if you can introduce yourself. Thank you so much, Hemani. Hello everyone, I'm Abhishek Chandel. I'm a representative of Red Deer Polytechnic, South Asia. It's a Canadian institution. We based out of Alberta at Red Deer City. Our Red Deer institution, Red Deer Polytechnic, we based out of Alberta at Red Deer City. It's very near to Calgary and Edmonton. It's just 1 hour 30 minutes away from Calgary and from the Edmonton. It's exactly in the between. It's a public institution. We was established in 1957. It's more than like 65 years we contributing with the education. It's a 100% public institution at Red Deer City. Abhishek, if you can brief students about the program and the admission requirement and everything, so they can get the better idea about your polytechnic. With Red Deer Polytechnic, we offer several programs. They are top-notch programs. These are all our STEM category programs. So you will get PGWP rights after completing these programs. Okay. A few of programs like healthcare aid, computer programming, AI, artificial intelligence. We have both UG and PG, and then we have some competitive programs like practical nursing, pharma technician, kinesiology, pre-health sciences, university sciences, and Bachelor of Biological Sciences and in Psychology. So these are the program which is we have open and in STEM category. So in terms of eligibility criteria, so the bare minimum eligibility criteria for healthcare aid, we only require 50% in English, only in 50% in English, and student would be eligible for this program. If you want to go for some IT program, so computer or AI, so we only want 50% in English and mathematics, and he's good to go for these program. And rest of the programs we have a different requirement, like 60% overall, not just 50%. So all the different programs have different eligibility criteria, so that will share the program matrix. You can check those programs. Okay, so overall, if we will consider a management student or a math holder, like 12th में जो बच्चे ने मैथ किया है वो मिनिमम 50% से स्टार्ट कर सकता है, राइट? ओके, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कोई 12 स्टूडेंट है जिसने 12th का बच्चा जिसने मैथमेटिक्स किया है, यहाँ पे बेसिकली आपको पता ही है इधर वो मैथ्स करेगा या बायोलॉजी करेगा, राइट? अभी जिसने मैथ्स किया है और 50% 60% के बीच का है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? उस बच्चों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, एंड हेल्थ केयर एड का प्रोग्राम भी फॉर दैट मैटर बच्चा कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरग्रेड में है आपके पास? हमारे पास दोनों है, यूजी भी है और पीजी भी है, अंडरग्रेड भी है और पोस्ट ग्रेड भी है। दैट इज अमेजिंग बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजुअल सब यूनिवर्सिटी के पास पीजी में ही है। आज मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करती हूँ, शायद आप मुझे पहले ऐसे मिले वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरग्रेड में भी है। So that is amazing. It's 2 years diploma. या बिल्कुल, ये हमने अभी नया स्टार्ट करा है, सितंबर 25 से हमारे पास ये लाइव है। Okay. एंड ये 2 years का यूजी डिप्लोमा है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 50% इंग्लिश और मैथ्स में चाहिए। यू आर गुड टू गो फॉर दिस प्रोग्राम फॉर यूजी 1। अगर पीजी में जाना चाहते हो तो आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए एंड यू विल ओके, सो बैचलर्स 3 years का होना चाहिए या 4 years? अब इसके लिए 4 year कंसिडरेबल है हमारे हिसाब में। अगर किसी बच्चे ने बी या बीटेक करी है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर पीजी 1। परफेक्ट। ये तो बात हो गई मैथ्स जो बच्चों ने किया है उसकी बात। अभी कोई स्टूडेंट है जिसने बायोलॉजी किया है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है आपके पास? उसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्टैम कैटेगरी में प्रोग्राम्स ओपन है, अवेलेबल है। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स आपको बता देता हूँ, जैसे हेल्थ केयर एड है, किन्सोलॉजी एंड स्पोर्ट्स स्टडीज में है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ये कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। इसमें बायोलॉजी का बच्चा विदाउट मैथ, सिंपल बायोलॉजी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए इंग्लिश और बायोलॉजी में, ही वुड बी एलिजिबल फॉर दीस प्रोग्राम्स। Perfect. And all those courses are leading to the present work permit law. And another base thing about this polytechnic is आपका अगर IELTS अभी आपने नहीं दिया है, यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और यू आर अ 12th ग्रेड स्टूडेंट, अभी आपके पास 12th में या फाइनल ईयर में BCO एग्जाम आप अभी सोच रहे हो कि थोड़े टाइम के बाद होगी, तो दिस इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर यू द कंडीशनल एडमिशन ऑल्सो। 12th भी अगर आपका अभी रनिंग है, IELTS भी नहीं दिया है, बेस्ड ऑन जस्ट योर 11th ग्रेड और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर या 2nd ईयर के बेस पे भी आप कंडीशनल एडमिशन यहाँ पे एप्लीकेशन करके ले सकते हो।
ठीक है अभिषेक जी, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, परसेंटेज क्या है एंड द एवरेज डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। अभी मुझे ये बताइए आप लाइक एडमिशन के लिए कौन कौन से बोर्ड्स एक्सेप्ट करते हो? वी एक्सेप्ट ऑल द स्टैंडर्ड बोर्ड्स विच मीन्स आपके पास यहाँ पे जो भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या फिर Okay. गुजरात पंजाब हरियाणा ओके ऑल बोर्ड्स आर एक्सेप्टेबल। इवन अगर आपके पास यहाँ पे नेशनल जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है नेशनल ओपन बोर्ड डिस्टेंस Okay. लर्निंग के वो भी इवन एक्सेप्टेबल है हमारे साथ। ग्रेट ग्रेट। अभी कोई स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसने एजुकेशन ओपन स्कूलिंग से, तो वो भी एप्लीकेशन कर सकता है। सो स्टूडेंट सेव दिस वीडियो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। IELTS के साथ साथ आपका ऑफर भी आ जाएगा, पैरेलल आप फंडिंग रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर दीजिए एंड कंप्लीट योर कैनेडियन एजुकेशन ड्रीम। फीस की बात आती है तो अभिषेक जी आप थोड़ा ब्रीफ करोगे कि फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज का किस तरह से रहेगा एंड हाउ मच दे हैव टू डिपॉजिट फॉर पैल, बिकॉज ज्यादातर इंस्टीट्यूशन एक सेमेस्टर का डिमांड करती है फॉर द पैल प्रोसेस, तो आपकी इंस्टीट्यूशन में किस तरह से है? जी बिल्कुल। सो हमारे साथ में क्या है हमारे फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग है जो Okay. स्टार्ट हो जाती है 16,000 कैनेडियन डॉलर्स से फॉर And- एंटायर 1 ईयर राइट? फॉर 1 ईयर ओके एंड गोज अप टू 25-26 तक जाती है। तो ऑन एन एवरेज जो फीस स्ट्रक्चर आप ले सकते हो 18 से 20 हजार में मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स का फॉल करता है। आ जाता है। उसमें भी हमारे पास जैसे आपने पूछा पैल और एलओए के लिए Yes. उसमें हमारे पास एक और बहुत अच्छी लाइक फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही बच्चे का ऑफर लेटर आता है एट द अमाउंट ऑफ 1400 कैनेडियन डॉलर्स 1400 कैड में सिर्फ और सिर्फ Okay. बच्चा हमारे साथ सिर्फ एडमिशन डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट पे पैल और एलओए ले सकता है एंड उसकी सीट कंफर्म हो जाएगी, बुक हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द फी वो देन दे सकता है हमें। परफेक्ट। अगर आपके पास अभी लो बजट है तो आप $1400 पे पैल सिक्योर कर लीजिए एंड देन पैरेलल लोन वगैरह कुछ भी प्रोसेस करना है तो वी आर हेल्प यू फॉर ऑल द असिस्टेंस। गवर्नमेंट से लोन करा के यू कैन पे द रेस्ट ऑफ द फीस एंड अश्योर योर वीजा थ्रू वीजा ट्री। ग्रेट इन्फॉर्मेशन अभिषेक जी। अभी आप मुझे बताएं कि अभी ऑफर लेटर कौन से इंटेक के लिए इश्यू हो रहे हैं? जो सबसे नियरेस्ट इंटेक हमारे साथ है दैट इज May 2025 अवेलेबल है Okay. एंड इवन हम September 25 के लिए भी भी ओपन ओपन हो गया है। परफेक्ट सो परफेक्ट। इन दोनों इंटेक्स में आप एप्लीकेशंस डाल सकते हो एंड हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जो बच्चे हमारे साथ अभी अप्लाई करेंगे हम उनको 30% एप्लीकेशन फी पे वेवर दे रहे हैं। ग्रेट। अभी एप्लीकेशन फीस कितना है विदाउट लाइक वेवर? विदाउट वेवर इट्स 150 कैट एंड हम उस पे आपको 30% ऑफ दे देंगे। ओके तो स्टूडेंट आपको सिर्फ $120 ही एज ऑफ नाउ पे करने हैं एंड यू विल गेट योर कंडीशनल ऑफर लेटर 2 प्लस योर पैल विल बी प्रोसेस जस्ट with the 1400 Canadian dollars. So it's a great opportunity, based location and one of the most demanding institution with all the facility about the part-time job, accommodation and a world-based education will be covered over here. अभी जैसे हमने देख लिया एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज क्या चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी है, कितना वेवर है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हाउ अबाउट स्कॉलरशिप। सो फॉर स्कॉलरशिप वी हैव लाइक अ कपल ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके तो जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक वी ऑफर लाइक स्टार्टिंग जो स्कॉलरशिप दैट इज 3000 कैनेडियन डॉलर्स एंड इवन अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है हमारा कोई हाउस है कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स ज्वाइन करता है टीम ज्वाइन करता है तो उन बच्चों के लिए भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस इज अगेन बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स जिसको स्टडी के साथ साथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आपका वो इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप दैट विल सेव योर ओवरऑल स्टडी एक्सपेंस। अभिषेक जी मैं अभी आपको एक जो रूटीन क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं आके वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे लाइक बच्चा वहाँ पे आता है तो आप लोग कोई वहाँ पे अकोमोडेशन की या हॉस्टल की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो? या हमारे कैंपस में ऑन कैंपस हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल है ओके एंड इवन वहाँ पे अकोमोडेशन हमारे पास में लाइक एक तो सिंगल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है एंड अगर कोई अपनी फैमिली स्पाउस या फैमिली हाउसिंग चाहता है वो भी इवन अवेलेबल है। ओके ओके। तो एंड उसका कॉस्ट वगैरह किस तरह तो से? जो हमारी कॉस्टिंग है दैट स्टार्ट समवेयर अराउंड फॉर 550 कैट से स्टार्ट हो जाती है एंड जिस तरह की आप हाउसिंग चाहते हो 1 BHK या सिंगल रूम या फिर फैमिली हाउसिंग उस तरह से बढ़ती जाती है 1200-1500 कैट तक बट स्टार्ट हो जाती है वेरी अफोर्डेबल 550 कैट। $550 इज लाइक अगर आप पीजी में या शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हो जहाँ पे मेजॉरिटी लाइक चीजें आपको अपने आप करनी है स्टिल उसका कॉस्टिंग 550 से बढ़ जाता है। यहाँ पे तो 550 विथ अ गुड सेफ्टी एंड द अकोमोडेशन इज क्वाइट नियर टू यूनिवर्सिटी, तो आपका ट्रैवल का भी कोई एक्सपेंस या कोई एडिशनल टाइम उसमें नहीं जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो यूजुअली स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि हाउ अबाउट पार्ट टाइम जॉब इन द लाइक ऑप्शन नियर टू यूनिवर्सिटी?
सो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, बिकॉज अगर आप बात करें लास्ट 2000 दिस ईयर 2024 की, तो मोर देन 250 जॉब्स पार्ट टाइम जॉब्स हमने अपने ही कैंपस में लाइक ऑन एंड ऑफ सीजन में हमने अकोमोडेट करी है स्टूडेंट्स को। ओके तो पार्ट टाइम जॉब्स की दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज रेड डियर की पॉपुलेशन है दैट इज समवेयर अराउंड 1 लाख वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ओके एंड उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ 10% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, विच मीन्स हम सिर्फ 1000-1200 बच्चे पूरे साल में लेते ओके हैं। सो इट्स अ ट्रू कैनेडियन कल्चर। तो आराम से बच्चा वहाँ पे अकोमोडेट कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर हाई, तो अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ रहने के लिए। परफेक्ट। अगर आपको ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे आपको कनेडियन कम्युनिटी को एक्सप्लोर करना है, स्पेसिफिकली कैनेडियन या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ रहना है, तो इट्स अ परफेक्ट लोकेशन विद अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर एंड अमेजिंग जॉब एंड अ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी जैसे जॉब के लिए होता है, बच्चे ने स्टडी कर लिया, जब वर्क परमिट की ड्यूरेशन आती है तो यूनिवर्सिटी आई मीन इंस्टीट्यूशन कुछ हेल्प करती है उनको टू क्रिएट अ रेज्यूमी या एंट्री प्रिपरेशन, ऐसा कुछ? सो जो ये बेसिक सर्विसेज है रिज्यूमे के लिए, या फिर उनको कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए या असाइनमेंट्स में, या ये सारे हमारे पास टेलर फिट कस्टम सर्विसेज में अवेलेबल हैं, ये तो Okay. बच्चे कभी भी किसी भी टाइम में अवेल कर सकते हैं। Okay. इसके अलावा एडिशनल क्या देते हैं, हमारे पास प्लेसमेंट के फेयर्स होते हैं, एजुकेशन जॉब असिस्टेंस है, हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो दैट इज मोर देन 95% है, तो ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है हमारे कैंपस में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। ब्रीफ कर पाओगे और रेड ईयर का कैंपस साइज और कितने स्टूडेंट्स एनुअली लाइक एनरोल होते हैं फॉर द डिफरेंट कोर्सेज? सो हमारा जो कैंपस साइज है रेड डियर का दैट इज मोर देन 300 एकर्स में है, वहाँ पे आराम से ओके अच्छा खासा बड़ा मैसिव कैंपस है। हर एक जो भी फैकल्टी है या फिर डिपार्टमेंट है, जो स्टडीज है, बिजनेस के, आईटी के, सबके लिए अलग से बना हो। तो इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे बाय वॉक ट्रैवल करना चाहते हो, इट वुड बी लाइक आपको अच्छा खासा मतलब टाइम लग जाएगा उसको कवर करने के लिए ट्रैवल से। कम्स टू द पार्ट, इतना बड़ा कैंपस है हमारे पास में, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 6000 स्टूडेंट्स। एक साल में हम 5 से 6000 स्टूडेंट्स को स्टडी करवाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% इंटरनेशनल स्टूडेंट है, विच मीन्स 1000 से 1200 बच्चा ही हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डोमेस्टिक। तो आप प्रॉपर एक डाइवर्सिटी जो एक्सपोजर चाहते हो स्टडीज में, वो आपको मिलेगा हमारे कैंपस में। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। आप कोई लाइक मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे रूमर्स मार्केट में है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी लाइक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें से कुछ सही होती है कुछ गलत होती है, बट स्टूडेंट्स एंड द फैमिली आर गेटिंग कंफ्यूज इन दैट कि कनाडा अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे? Yeah, I have one message for the international student who's like जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बी पॉजिटिव, कनाडा इज स्टिल अ ड्रीम डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं पीआर के लिए, वर्क के लिए। एंड फर्दर अगर आपको कोई भी न्यूज़ वेरीफाई करनी है, यू कैन विजिट लाइक ऑथेंटिक आरपीज एंड इवन आईआरसीसी वेबसाइट, आपको उसको क्रॉस वेरीफाई कर सको। एंड हमारा मई एंड सितंबर इनटेक अवेलेबल है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वीज़ा ट्री इज़ आर वन ऑफ द ऑथराइज्ड एंड लाइक रेप्यूटेड पार्टनर विद अस। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इनकी गाइडेंस ले सकते हो, एंड इनके थ्रू फाइलिंग एंड जो भी आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए या फिर आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कम हियर, विजिट हियर वीज़ा ट्री। थैंक यू अभिषेक जी फॉर दिस अमेजिंग लाइक सेशन, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन नोट कर ली होगी आप लोगों ने फॉर रेड डियर पॉलिटेक्निक। सो डोंट वेट, शेयर योर डॉक्यूमेंट्स, आर कॉन्टेक्ट डिटेल अवेलेबल ऑन स्क्रीन। सो आज ही आप सितंबर या मई 2025 के लिए एप्लीकेशन कंडीशनल कर लीजिए, पे $1400, गेट योर पैल, बुक योर सीट एंड अप्लाई फॉर योर वीजा। Thanks for watching, and for any kind of information or any doubt, feel free to connect us. Thank you.